So good afternoon all. Myself, I'm Jiten Kumar Dev. I'm a prosthetics and orthopedics from CRC Sundarnagar. And today I had an honor to present myself in front of you all. So with regards to my director, Dr. Himanshu Das, Director NI PVD Dehradun, we are here to for this session on mental health. As the previous slide has been shown to you regarding how this comes and what Kiran is helpline is being launched by our honorable minister. So today's we got Dr. Anil Singla, our chief guest for this session, and we have got our guest of honor, Dr. Rajan Malhotra. So for before we ask for our key speaker, Dr. Solution, to start with this session, I would like to say something about Dr. Anil Singla. Before that, it's about the Himachal Dental College, who started in the ages of Dr. Puranchand Medical Trust in the year 1994, had a dynamic leadership of Dr. V.K. Gupta, at present the chairman of the trust. The institution had competent authority, faculty of 12 professors, 8 associate professors, 12 readers, 11 senior lecturers to impart education in various specialties. Dr. Singla, Dr. Anil Singla, born on 16th July 1963, he's completed his BDS in 1984 from Government Dental College, Patiala, Punjab. He's done his master's in dental surgery, orthodontics in 1993 from KGMC, Lucknow, King George Medical College, Lucknow. At present, he is working as a professor and head of Department of Orthodontics in Himachal Dental College, Sundarnagar. Previously, he was a senior resident government in Government Medical College, Chandigarh, and reader in Himachal Dental College, Sundarnagar, and as associate professor in Himachal Dental College. With regards to our as guest of honor, Dr. Rajan Malhotra, principal Himachal Dental College, Sundarnagar. I tried to get the introduction of sir, but I didn't find anything. But when I was going through the website of Himachal Dental College, I find a very beautiful lines. That's what he has written in his message. I personally believe in plain talking. That's so nice of you, sir. And regarding dentistry, he's written, dentistry is exciting, versatile, challenging, and rewarding career choice as a student, whether at the graduate level or postgraduate level. Yeah, comprehensive educational experience involve a blend of basic sciences, dental technology, and clinical practices. So with my honor, I would like to invite Dr. Anil Singla for a few words to start this session formally. So, Dr. Singla, welcome, sir. Thank you, Dr. Jitendra Dev. Namaskar. Honorable Dr. Himanshu Das, patron for today's virtual program, is the director of NIEPVD Dehradun, that is National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities. They popularly known as Divyangjan. Resource person for today's virtual program, Dr. Shatrughan Singh, Assistant Professor Clinical Psychology, CRC Sundarnagar, and his entire team. Dr. Rajan Malhotra, Principal, Himachal Dental College, Sundarnagar. Dr. Vikas Jindal, Director, Himachal Dental College, Sundarnagar. Dr. S.C. Gupta, Vice Principal, Himachal Dental College, Sundarnagar. Dr. Ashok Sharma, Administrative Officer, Himachal Dental College, Sundarnagar. Senior faculty colleagues from the Dental College, and my dear students. It's been really an honor to be the chief guest on today's program. This is an all-important topic, that is mental health and stress management. But I think it is more relevant today, seeing the today's circumstances for the last 6-8 months. Although mental health is important for all age groups, but of late we have found that it is more relevant in the age group we are dealing with, that is a student community. So when this idea of virtual program mooted by Dr. Shatrughan regarding this topic
we readily agreed to this. I was told that even the state government and the center government are very, very serious on this issue. And recently, central government, the Department of Ministry of Social Justice and Empowerment has launched a 24-hour helpline for mental disorders. That is by the name of Kiran, if I'm correct, Dr. Shatrughan. That's what I've been given to understand this regarding Kiran helpline. You are very much correct, sir. You are very much correct. Thank you, sir. So I'm grateful for these resource persons, especially from people from CRC, Sundarnagar, for enlightening us on this very program. I once again, on behalf of Himachal Dental College, Sundarnagar, on students' behalf, on faculty's behalf, I'm grateful to Dr. Shatrughan Singh for such a wonderful program. Over to you, sir. Jiten? Yes, sir. Thank you, Dr. Singla. And it's a very hearty. It's like we got a Kiran अभी launch हुआ है and हम लोग काफी कुछ जानते भी इस बारे में. And would you please start presenting? Yeah, thank you very much. Regarding this mental health के बारे में, because I'm from a field of prosthetics and orthotics, and I'm just a technical coordinator, so I'll switch on directly to Dr. Shatrughan Singh. He's done his bachelor and master from Rimpa Sarachi, and at present he's working as assistant professor in CRC, Department of Clinical Psychology. So over to Dr. Shatrughan Singh for the presentation. I believe he's going to share his screen. Dr. Singh? Yes, sir. Yes. Over to you, sir. Yes, it's coming. Slideshow. So all of are you listening or Yes, sir. visualizing the slides? Yes, sir. Is there? Okay, sir. Okay. So formally, today program, namely mental health and stress management, it is very relevant today due to Corona COVID. So this is the program which I am going to start in the front of you. It's very significant, very important due to various reasons. तो फॉर्मली हम इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस कोरोना महामारी के दौर में मेंटल हेल्थ को बचाए रखना, अक्षुण्ण रखना हम सब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक WHO का रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 7.5% इंडियन पॉपुलेशंस suffering from some kind of mental disorder, and depression is leading mental health problem, causes disability. तो चाइना, बांग्लादेश और साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उसके बाद जो हमारा इंडिया में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर हम बात करें ग्लोबल पॉपुलेशन की, अगर यूरोप की बात करें तो अमेरिका, इंग्लैंड में भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा लोग कहते हैं कि फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम कैसे ये पहचान करेंगे कि हमारा मेंटल हेल्थ ठीक है और इसको किस तरह से, कौन से पैरामीटर है, क्राइटेरिया है जिसको हम अपना करके ये अपने आप को हम मेंटल हेल्थ से की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको मेंटल इलनेस बोलते हैं इसको हम बचा के रख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि व्हाट आर द गुड मेंटल हेल्थ।
व्हाट इज द गुड मेंटल हेल्थ, हम कैसे किसी व्यक्ति को अगर हम असेस करें तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें हम अगर उसका ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि द एबिलिटी टू लर्न, अगर कोई व्यक्ति को जो काम या जो वातावरण से जो हम डे टू डे सीखते हैं उसमें वो सीख रहा है, उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। तो ये एक एबिलिटी है लर्निंग की, जो भी हमें काम वातावरण में आए दिन बहुत सारे काम होते रहते हैं जिसको हमें सीखना पड़ता है। दूसरा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज ए रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो हमें कुछ न कुछ महसूस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमारा जो संवेग है उसको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर दुख की बात है तो नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, खुशी की बात है तो पॉजिटिव इमोशन को भी एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे अंतर्गत, आपके अंतर्गत एक क्षमता है जिसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो दुख में अपनी दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, खुशी में अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि उसका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे अंतर्गत एक ऐसी एबिलिटी है टू फॉर्म एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ अदर। अच्छा संबंध, गुड रिलेशनशिप परिवार में, समाज में, कम्युनिटी में और जहां हम काम करते हैं वहां होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी, बाद में माल एडजस्टमेंट होगा और वो मेंटल हेल्थ की तरफ वो प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा। तो ये क्षमता हर व्यक्ति में है कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो, वो डेवलप हो, मेंटेन करके रखा जाए, तो ये भी एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। अगला हमारे अंदर, आपके अंतर्गत, सब लोगों के अंतर्गत हमारा एक कूपिंग स्किल है। हम अपने मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि जो भी चेंजेज होगा हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडेप्ट करेंगे। अनसर्टेनिटी जो है, इनसिक्योरिटी जो है, उसके साथ भी हमारा तालमेल बनेगा, हम उसके साथ भी एडजस्ट करेंगे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। हम अच्छी तरीके से सोचें, फील करें, महसूस करें, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक इन ए नटसेल हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ। अब आइए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब इंटेलेक्चुअल जेंट्री है हमारी, इस बात पे हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ मेंटल इलनेस। जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो मेंटल इलनेस के रूप में अगर हम देखें तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अगर किसी व्यक्ति में दृष्टिगोचर होता है, व्यवहार में परिलक्षित होता है, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति को प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट और जो कंसर्न प्रोफेशनल्स हैं उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। उसमें पहले नंबर पे आता है फीलिंग सैड एंड डाउन। ये देखा गया है कि किसी व्यक्ति का जो मूड है पिछले 15 दिनों से लो है, सैड है और वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, उसकी वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन, अटेंशन कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बाधित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो मेंटली इलनेस के तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में 2 या 3 सिम्टम्स होने से हम उसको मेंटली इल नहीं कह सकते, जब तक कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन जाता, प्रॉपर उसका असेसमेंट नहीं हो जाता। तो अगला सिम्टम्स है एक्सेसिव फियर और वरीज।
ऐसे लोग जिनकी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम शुरू होती है वो बिना वजह डरते रहते हैं, बिना वजह चिंता करते हैं, उदासी और नेगेटिव थिंकिंग, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड मूड चेंजेस, वेरिएबिलिटी, वेरिएशन इन मूड चेंजेस, कभी हाई में जाना, कभी लो में जाना, कभी गुस्सा करना, कभी इरेलीवेंट टॉकिंग करना, तरह तरह का बहम करना, बोलना कि हमें नींद नहीं आती, हमें अंदर से शक्ति नहीं है, हमें कान में आवाज आती है, हमारे पीछे लोग पड़ा हुआ है, हमें कोई हानि पहुंचाना चाहता है। तो ये भी एक फॉल्स बिलीव है, फॉल्स कल्चरली बिलीव है कि अगर कोई चीज नहीं है फिर भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को कोई चीज दिखाई दे रहा है, कोई सुनाई दे रहा है, तो ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस हैं। तो जब भी क्लिनिकल पिक्चर की बात होती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की, मेंटल इलनेस की, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और ये ट्रीटमेंट मांगता है। इसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेना पड़ता है और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से धीरे धीरे साइकोपैथोलॉजी ठीक होती है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। व्यक्ति अगर मेंटल इलनेस में है तो वो ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम आएगी, वो ज़्यादा खाना खाएगा या कम खाना खाएगा, उसके जो एक्सेसिव एंगर होगा, हॉस्टिलिटी होगी, वायलेंट होगा, एंड सुसाइडल थॉट्स भी उसमें देखने को मिलता है। तो कई बार घर परिवार के लोग अगर कीनली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको अगर 15 दिन से ये लक्षण में अगर 3-4 लक्षण है तो उसको जितना जल्दी हो सके मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, बहुत से ऐसी मेडिसिन आ गई है, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, साइकाट्रिस्ट से इलाज किया जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग किया जाए, तो हमारी मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो 70% ठीक हो सकती है। कुछ ऐसी डायग्नोसिस है जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जिसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी अगर इसका टाइम से इलाज हो, डायग्नोसिस बने, तो ये 70% ठीक हो जाता है। आइए हम इस बात पे विचार करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, हमने आप में कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो मेंटल इलनेस की तरफ वल्नरेबल है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में मेंटल इलनेस का इतिहास है, ब्लड रिलेटिव्स में या पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में, तो उसको ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉब्लम्स इसको हम मानते हैं। तो ब्लड रिलेटिव्स में अगर किसी को मानसिक रोग है, कोई हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, तो व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने आप को टेंशन से बचना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सडन परिवार में कोई लव्ड वन है जिसकी डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, किसी को कोई एग्जाम में फेल कर गया, किसी को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस गया, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है जो जीवन में चलता रहता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह की बात होने पे भी एक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर बनता है कि व्यक्ति में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति मेडिकल प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसको डायबिटिक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है, अगर वो क्रॉनिक है, क्रॉनिक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो वो भी एक मेंटल हेल्थ की तरफ इशारा करता है। उसको भी सावधान रहना चाहिए कि और समय समय पे जो उसके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, उनसे भी
चेकअप करवाना चाहिए। कई बार देखने को मिलता है कि कोई ऐसे हेड इंजरी हो गई, सीरियस ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, उसकी वजह से सिर में हेड इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, नोज ब्लीडिंग हुई, ईयर ब्लीडिंग हुई, व्यक्ति कोमा में चला गया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो देखा गया है कई बार कि जो हमारी नेचुरल क्लैमिटीज हैं वो भी बहुत हद तक मेंटल इलनेस को प्रिसिपिटेट करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा अगर हम अल्कोहल को लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं जो अनप्रिस्क्राइब डॉक्टर्स के द्वारा, तो इसकी वजह से भी मानसिक रोग की प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक रिस्क फैक्टर में आता है। कई बार बच्चे का अगर चाइल्डहुड हिस्ट्री देखें, उसको अगर किसी ने अब्यूज किया, अब्यूज इन टर्म्स ऑफ नेग्लेक्टेड, फिजिकली अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज, साइकोलॉजिकली अब्यूज, इमोशनली अब्यूज, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, एडोलेसेंट पीरियड में आएगा, एडल्टहुड में आएगा, तो वो सारी चीजें जो कन्फ्लिक्ट के रूप में उसके दिमाग में दबी हुई है, वो मेंटल हेल्थ के रूप में उसको प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर किसी को प्रीवियस मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है तो भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रिकरेंट हो जाता है, बार बार हो जाता है। तो इसमें देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, वो निकलते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, इमोशनली उनका इमोशन रिलीज नहीं होता, इमोशनली मैच्योर हैं, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। तो इस रिस्क फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम जानेंगे तभी हम इसके इलाज और मैनेजमेंट की बात करेंगे। आइए अब इस बात पे विचार करें कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है फुल फ्लेजेड, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा उसके जीवन में, और वो जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि अनहैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है, जो डे टू डे इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ की जो चीजें हैं, वो उससे वो दूर होता चला जाएगा। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी, उसको टीवी देखने में मन नहीं लगेगा, और जो भी रिक्रेशनल एक्टिविटीज हैं जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में होती है, वो चीज खत्म होता जाएगा। अगला कॉम्प्लिकेशन है फैमिली कन्फ्लिक्ट्स। फैमिली कन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि परिवार में क्लैशेस ऑफ आइडियाज होगा, ये फैमिली कन्फ्लिक्ट्स है। उसकी वजह से एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, बाद में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो माल एडजस्टमेंट होगा। तो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आती है, लोग बाग आइसोलेट रहने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और इसके वजह से लोग टोबैको, अल्कोहल, अदर ड्रग्स के चपेट में आते हैं, जो कि एक अनदर प्रॉब्लम, एक अनदर डिसेबिलिटी, एक अनदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को खड़ा करता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत, जैसे अगर कोई बच्चा कोई स्कूल की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, अगर बच्चा है उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा। अगर कोई टीचर है तो उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो बार बार क्लास में एब्सेंट होगा। उसकी जो कलीग्स हैं उनसे प्रॉब्लम आएगी। वो लीगल एंड फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं मेंटल हेल्थ की, अपने घर बार टूट जाता है, छूट जाता है, गरीबी आ जाती है, और व्यक्ति अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। देखा गया है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं वो फायर सेटिंग, लोगों के घरों में आग भी लगाते हैं, जो कि इन पे उनका कोई बस नहीं है, उनका इम्यूनाइन सिस्टम वीक होता है, और बहुत सारे इंफेक्शन भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग
आसानी से हार्ट डिजीज या बहुत से ऐसे मेडिकल कंडीशन हैं उसके भी चपेट में आते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जिस व्यक्ति को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से होता है। तो ये अभी जानना बहुत जरूरी है। अब आइए इस बात पे हम विचार करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, साइकोटिक ब्रेकडाउन की जो प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस की जो प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है? व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस? इसमें जहां तक मैं समझता हूं, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे सबसे नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ऊपर होना चाहिए। कई बार देखना, हम लोग पूछते हैं साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, परिवार वालों से जब हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं कि बीमारी शुरू होने से पहले इसका स्वभाव कैसा था, तो परिवार के लोग बताते हैं कि इसकी पर्सनालिटी जो स्वभाव में ही प्रॉब्लम थी, वो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाता था, डरने लग जाता था, घबरा जाता था, हमेशा चिंता उदासी में रहता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोटिक पर्सनालिटी। तो जो लोग न्यूरोटिक पर्सनालिटी के लोग हैं, उनमें न्यूरोटिक डिप्रेशन, एंजाइटी या न्यूरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक पर्सनालिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, हैबिट्स, पर्सनालिटी डायमेंशन, जिसकी वजह से हम मानसिक रोग के शिकार होते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एस्किज़ोइड पर्सनालिटी। इसमें व्यक्ति अपने आप को अकेला रहता है, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व है, लोगों से मिलता जुलता कम है। इसको हम बोलते हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी। ऐसे लोगों को अगर कोई लाइफ इवेंट हो, कोई मेजर स्ट्रेसर हो, तो ये लोग सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। ये भी एक पर्सनालिटी डायमेंशन है जिसको हम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी के अंतर्गत रखते हैं। इसके आगे है पैरानॉइड पर्सनालिटी। इसमें वहमी व्यक्तित्व है बहुत लोगों का, जैसे लोग बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं, हमें पकड़ के ले जाएंगे। तो अगर इस तरह का स्वभाव है तो उसको पैरानॉइड साइकोसिस या पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। एक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं हाइपोमेनिक। हाइपोमेनिया में क्या होता है, व्यक्ति कुछ एक्सेसिव एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा बात करेगा, बड़ा बड़ा बात करेगा, सोशल बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे लोग को आगे जाकर के मैनिक एपिसोड मतलब तेजी की बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक और मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं साइकोपैथिक पर्सनालिटी या सोशियोपैथी। इसमें ऐसे स्वभाव के जो लोग हैं वो एडिक्शन में बहुत जल्दी आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, हमेशा इनको कोर्ट कचहरी पुलिस से पंगा पड़ता है और इनके बातों पे कोई एतबार नहीं करता। तो साइकोपैथिक जो लोग हैं उनको गंभीर मानसिक रोग के रूप में, जैसे वो एडिक्शन के शिकार होते हैं और वो डी एडिक्शन करवाने के लिए जाते हैं, तो उनको डी एडिक्शन करना बहुत जरूरी होता है और वो बहुत मुश्किल से उनका डी एडिक्शन होता है। तो ये प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी एक मेजर फैक्टर है मानसिक रोग को उत्पन्न होने में। इसके आगे हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेंटल इलनेस जो इज मोर कॉमन इन पीपल whose blood relative also have a mental illness। ऐसे लोग जिनके ब्लड रिलेटिव्स में मानसिक रोग का इतिहास है वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे बायोलॉजिकल डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, जो मेजर साइकोसिस है, ये जेनेटिक लोडिंग की वजह से होता है। जीन कुछ रिस्पॉन्सिबल जीन है, देयर आर सर्टेन जीन्स मे इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए मेंटल इलनेस। तो जब भी कोई लाइफ सिचुएशन होगा, अगर कोई पॉजिटिव मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है तो इट मे ट्रिगर टू मेंटल इलनेस। कुछ ऐसे वातावरण से रिलेटेड फैक्टर हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो स्ट्रेसर में आ गया, उसका वातावरण ठीक नहीं है, पड़ोस अच्छा नहीं है, कुछ अल्कोहल कुछ ड्रग्स के चपेट में आ गया, कुछ सर्टेन कुछ कल्चरल इवेंट्स हो गए, कल्चरल शौक हो गए, उसकी वजह से व्यक्ति को मानसिक रोग का कारण बनता है। इसके बाद हम न्यूरोकेमिकल चेंजेज इन ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर भी, जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ये भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनका ऑटोमेटिक फंक्शन होता है ब्रेन में। अगर ये किसी में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो व्यक्ति साइकोटिक न्यूरोटिक होता है। तो ये कारण है, कोई ये कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं मानसिक रोग के, जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए और समझना चाहिए कि किसी परिवार में अगर 10 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति को मानसिक रोग क्यों होता है। अब आइए इस बात को हम बात करें कि कितने प्रकार के मानसिक रोग हैं। मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जितने भी मानसिक रोग हैं उसको मेजर 2 टाइप्स, 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहला न्यूरोसिस और दूसरा साइकोसिस। न्यूरोसिस का मतलब है साधारण मानसिक रोग, जैसे चिंता हो गया, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, न्यूरोटिक डिप्रेशन, फोबियाज, हिस्टीरिया, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ये कुछ न्यूरोसिस है, उसकी वजह से ये बहुत सिंपल मानसिक रोग हैं। ये ऐसा हम सोचते हैं, जानते हैं कि आए दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चिंता, सिचुएशनल एंजाइटी होती है, कुछ दिमाग में विचार चलते हैं, पैनिक अटैक होता है व्यक्ति को, न्यूरोटिक डिप्रेशन है, फोबियाज है, हिस्टीरिया है। इसका 100% इलाज है। ये इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बने तो ये विद इन 6 मंथ जितने भी डिप्रेशन है, इंडोजेनस डिप्रेशन को छोड़ के, बायोलॉजिकल डिप्रेशन को छोड़ के, ये 100% ठीक हो जाता है। पैनिक अटैक एक ऐसा मानसिक रोग है जो न्यूरोसिस में आता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी सिमिलर टू हार्ट अटैक। कई बार क्या होता है, फिजिशियन लोग भी बड़ी मुश्किल से डायग्नोसिस बनाते हैं कि भाई ये इट वाज ए पैनिक अटैक, वेदर इट वाज ए पैनिक अटैक और हार्ट अटैक। तो ये कई बार इसकी कार्डिक न्यूरोसिस डायग्नोसिस होती है। तो हिस्टेरिकल प्रॉब्लम्स में व्यक्ति के अंतर्गत अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है। व्यक्ति वो जानबूझ के कुछ ड्रामा, खेल तमाशा करेगा ताकि परिवार के लोगों का अटेंशन हो उसकी तरफ। तो ये जो न्यूरोसिस की कैटेगरी है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। इसका अगर साइकोडायनेमिक्स सही तरीके से समझा जाए और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो ये 100% ठीक होता है। जो साइकोसिस है ये बहुत डेंजरस है। इसमें एक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। ये कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को ये सिजोफ्रेनिया हो गया एडोलेसेंट पीरियड में, ये 40 साल के पहले होता है, तो ये सारी जिंदगी उसको दवाई खानी पड़ती है, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, और एंटीसाइकोटिक और साइकाट्रिस्ट के साथ उसका आजीवन संबंध रहेगा। जो इसके अलावा एक्यूट साइकोसिस है, जो अचानक हुआ, कोई स्ट्रेसर की वजह से हुआ, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। इसमें 2-3% सिजोफ्रेनिया में या मेजर साइकोसिस में तब्दील होते हैं। अदरवाइज जो एक्यूट साइकोसिस के प्रॉब्लम्स हैं, इसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। जो अगला मेंटल इलनेस है, जिसको गंभीर मानसिक रोग मानते हैं हम, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये बहुत ही गंभीर है। ये सिजोफ्रेनिया से कम गंभीर है। ये एपिसोडिक प्रॉब्लम है, एक एपिसोड तेजी का, दूसरा एपिसोड लो का। ये 6 महीने में ये 100% ठीक हो जाएगा। जब परिवार में खुशी वाली बात होगी, कभी गमी वाली बात होगी, तो फिर रिलैप्स हो जाएगा। जो मेजर डिप्रेशन है, जिसको बायोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं, इंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं, इसके वजह से व्यक्ति सुसाइड करता है। तो ये भी बहुत डेंजरस है। कई बार पता नहीं चलता है व्यक्ति को, घर वाले को, और अंत में पता चला कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये भी एक गंभीर मानसिक रोग है। कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, उसकी वजह से भी मानसिक रोग होते हैं, बिहेवियर में चेंज होते हैं। आजकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी साइकाट्रिस्ट लोग साइकोसिस में ही मानते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से ठीक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये भी एक गंभीर मानसिक रोग है, और इसका इलाज भी
समय समय पे जैसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिक सोशल वर्कर, साइकाट्रिक नर्सेस, ये आजकल जो नया मेंटल हेल्थ एक्ट आया है जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसमें ये सारी चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रूप में दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये टाइप्स हैं मेंटल इलनेस के। अब क्या मेंटल इलनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या इसका प्रिवेंशन कैसे करें? इसके लिए सबसे जरूरी चीज है टू गेट रूटीन मेडिकल केयर, मेडिकल चेकअप। अगर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो मूड है वो ठीक नहीं है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, तो एक रूटीन में मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। तो ये बीमारी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये फुल फ्लेज डेवलप होने से पहले ठीक हो जाएगी। तो पे अटेंशन टू वार्निंग साइन। अगर कोई वार्निंग साइन है उसकी वजह से भी हमें डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और एक प्लान करना चाहिए। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको समझना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। जो फैमिली मेंबर हैं उनको सपोर्ट करें। और आजकल कहते हैं मी टाइम, अपने ऊपर क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना। अगर हम अपने ऊपर क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें तो हमें पता चलता रहा है कि जो अनयूजुअल थिंग्स हैं जो हमारा इमोशन, थिंकिंग्स को प्रभावित करते हैं, इनसाइड में प्रॉब्लम ले आते हैं, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो अटेंशन देना, अपने ऊपर ध्यान देना, मेडिकल केयर करना, एंड टू गेट हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हमें हेल्प लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, इसकी वजह से प्रिवेंट और रिलैप्स बच सकता है। तो अपने आप को केयर करना, गुड केयर करना, अगर इस तरह से हम अपने स्वभाव में, अपने दिनचर्या में कुछ बातों को ध्यान में रखें तो इट कैन बी प्रिवेंट ऑल्सो। हम पढ़ लिख गए, बहुत एडवांसमेंट हो गया, लेकिन आज भी देयर इज ए सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस। साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग जाना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि हम कोई मेंटल थोड़े हैं कि हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो इस तरह से इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ कम टू मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस बने। और प्रॉपर डायग्नोसिस कौन बनाएगा? साइकाट्रिस्ट बनाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाएगा। हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि दिन में अगर 200 पेशेंट फिजिशियन देखता है तो उसमें 30% जो प्रॉब्लम होती है वो साइकाट्रिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो रेफर नहीं करता है साइकाट्रिस्ट के पास। मुझे पता नहीं ये क्यों ऐसा होता है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस साइकाट्रिस्ट ही कर पाएगा। अगर कोई दूसरे स्पेशलिस्ट के लोग, चाहे वो फिजिशियन हो या अदर स्पेशलिस्ट के लोग हों, अगर वो डायग्नोसिस बना लेंगे तो ड्रग एडजस्ट नहीं होगा। अगर ड्रग एडजस्ट करेंगे तो साइड इफेक्ट मैनेज नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के उनको लास्टली रेफर करना पड़ेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के पास। जो मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस बनती है वो DSM-5 और ICD-11 ये डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं। 5 का मतलब है 5 बार ये एडिशन हो चुका। ये अमेरिका, यूरोप में लोग ज़्यादा यूज करते हैं। हमारे यहाँ जो WHO ने बनाया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11, ये दोनों जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है ये नया है। और सारे जो साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थ्योरी के रूप में, डायग्नोसिस के रूप में यूज करते हैं। जिसको अगर मानसिक रोग की प्रॉब्लम है उसको मेडिकेशन लेना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, साइकोथेरेपी के थ्रू जाना पड़ेगा, काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। और एक ECD ट्रीटमेंट है जो मेंटल हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है। तो आजकल बहुत अच्छा मैनेजमेंट है मेंटल इलनेस का। जो
साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन का ब्रांच है। तो साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिलके अगर प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट करें तो इसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिलती है। तो ये मैनेजमेंट पार्ट है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की। अब आइए हम इस बात पे विचार करें कि हिमाचल प्रदेश में मेंटल हेल्थ की सर्विसेज क्या उपलब्ध है। जितने हमारे जो ऑडियंस हैं वो सारे हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हरियाणा से संबंध रखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिमाचली। आप सबको विदित है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है और उसी के तहत अंडर सेक्शन 4556 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 हिमाचल प्रदेश में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड ऑपरेशनल इन ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिज एक्सेलेंसी हिमाचल प्रदेश ने भी मेरे को नॉमिनेट किया है मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। इनका काम है कि कौन से साइकाट्रिस्ट, कौन से लोग, अगर साइकाट्रिक नर्सिंग होम खोलना है तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में 62 डी एडिक्शन सेंटर ऑपरेशनल है, जिसका हम लोगों ने लाइसेंस दिया है अभी। हिमाचल प्रदेश में आपको विदित है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 30 इंडोर पेशेंट के लिए फैसिलिटीज हैं। टाटा मेडिकल कॉलेज में 10 बेडेड है और हिमाचल प्रदेश का जो एक ट्रेडिशनल मेंटल हॉस्पिटल है उसमें 62 बेडेड की सुविधा उपलब्ध है। मैं बात कर रहा हूँ इंडोर फैसिलिटीज अवेलेबल इन मेंटल हॉस्पिटल शिमला, 30 बेड्स available in Indira Gandhi Medical College and 10 beds available in RPG, टाटा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा। 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं वहाँ साइकाट्री ओपीडी और साइकाट्रिक पेशेंट और डी एडिक्शन पेशेंट के लिए उपलब्ध है। वहाँ इंडोर सुविधाएं अभी नहीं शुरू हुई है। बाकी प्राइवेट सेटअप में भी प्राइवेट साइकाट्रिक हॉस्पिटल है, सोलन में, शिमला में, सिरमौर में, धर्मशाला में। ये लोग भी अपना इंडोर आउटडोर करते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे वो संपर्क कर सकता है। जो इस आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट है वो है इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, क्रॉनिक और इंटेंसिव स्ट्रेस अगर किसी को व्यक्ति को है तो वो भी एक मेंटल इलनेस को प्रेसिपिटेट करेगा। तो अगर इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए तो हम बहुत हद तक मानसिक रोग से बच सकते हैं। तो आइए इस बात को डिस्कस करते हैं, इस बात पे विचार करते हैं कि प्रभावकारी तनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इस बात पे हमें समझना पड़ेगा कि ईच ऑल स्ट्रेस आर बैड। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी स्ट्रेस है वो सारे बैड स्ट्रेस नहीं है। मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, इससे हमारा परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी बढ़ती है। तो टू मच लेस स्ट्रेस अगर है ये अनप्रोडक्टिव है, ये इससे मतलब हमें काम करने में प्रॉब्लम आती है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होना भी चाहिए। टू लिटिल स्ट्रेस में रिजल्ट इन बोरेडम। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस और इफिशियंसी में प्रॉब्लम आएगी। तो हम अगर ये कहें कि सारा स्ट्रेस है वो खराब ही है, ऐसा नहीं है। तो ये स्ट्रेस कहते हैं कई सिनोनिम्स हैं। टेंशन कोई कहता है, कोई प्रेशर कहता है, विच इज रिलेटेड टू टाइम, टेंशन, फ्लक्चुएटिंग ऑफ एनर्जी एंड एक्चुअल जो स्ट्रेस है इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेस। अगर डिमांड ऑफ लाइफ, जीवन का अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो इससे स्ट्रेस होगा। तो वो कहते हैं कि आजकल जो स्ट्रेस है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया है। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं फ्री फ्रॉम स्ट्रेस है तो बहुत झूठ बोलता है। तो स्ट्रेस वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी हो गया है।
इस बात को समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस हमेशा बैड ही नहीं होता है। एंड नाउ कम टू हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेसर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेसर को हम वातावरण से कहाँ कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उसका स्ट्रेसर स्कूल से रिलेटेड होगा, उसके टीचर, उसके क्लासमेट्स से रिलेटेड होगा। अगर उसको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो स्कूल से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स को रोल्ड आउट करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है और कंप्लेन करता है कि मेरे को स्ट्रेस है, तो वो वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है कि उसको काम की वजह से प्रॉब्लम है, बॉस से नहीं बनती है। तो स्ट्रेसर को हमें रोल्ड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी बहुत स्ट्रेसर है, लोग का रिलेशनशिप ठीक नहीं है ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स। तो हमें परिवार में भी देखना पड़ेगा, अगर स्ट्रेसर को फाइंड आउट करना है, उसके रिलेशनशिप को भी रोल्ड आउट करना पड़ेगा। उसके कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई मेजर इलनेस है, वातावरण से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिविंग सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो फैक्टर हैं हमें रोल्ड आउट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस देखने के लिए स्कूल, वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप, लीगल कॉम्प्लिकेशन, फाइनेंसेस, हेल्थ, इलनेस, एनवायरनमेंट, लिविंग सिचुएशन, ये स्ट्रेसर है। ये रोल्ड आउट होने से, जैसा कि 2 इमेज हमने दिया हुआ है, आपको कुछ आइडिया लगेगा कि स्ट्रेसर हम किस एरिया में रोल्ड आउट करें, क्योंकि स्ट्रेसर अगर पता चलेगा तो उस पर हम काम करके उसका हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कहाँ कहाँ है। 2 तरीके से हम नेगेटिव इफेक्ट को समझ सकते हैं। पहला है फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से जो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति अगर वो क्रॉनिक स्ट्रेस में है तो वो वेट या तो लॉस करेगा या गेन करेगा। अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस होगा, उसका हार्ट का पाल्पिटेशन फ्लक्चुएटिंग होगा, ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज डिक्रीज। ये फिजिकल प्रभाव है निगेटिव स्ट्रेस का। इमोशनली प्रभाव भी देखा गया है, जैसे वो एंजाइटी में आ जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक उसका मूड जो है वो चेंज होगा, कभी लो मूड, कभी हाई मूड, कभी इरिटेबिलिटी। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन में भी बदल सकती है। तो इसको ध्यान में रख करके वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाएगा, वो अल्कोहल का शिकार होगा, अल्कोहल लेने लगेगा, ड्रग्स के चपेट में आएगा। तो ये नेगेटिव कुछ प्रभाव है स्ट्रेस का जो हमें शरीर और हमारे साइकोलॉजी के रूप में देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स। इसमें लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें मुंह सूखता है, हमारा जो स्किन है वो ठंडा पड़ गया, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, रैपिड ब्रीथिंग, मतलब बहुत जल्द सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, हार्ट रेट फास्टर हो गया, मसल टेंस हो गया, नौसिया लोग कंप्लेन करते हैं, डायरिया कंप्लेन करते हैं, एंड ए डिजायर टू यूरिनेट, बार बार वो बाथरूम की तरफ जाते हैं। और हमारे स्टमक में जैसे कंप्लेन लोग करते हैं कि बटरफ्लाई चल रही है। तो ये कुछ शारीरिक शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। अगर इसमें से 4-5 स्ट्रेस के सिम्टम्स आप में है तो ये जरूर चिंता का विषय है, इसे दैट इज नीड्स टू बी केयर। अब कुछ इसके लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, जैसे इंसोमेनिया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, लेट से आएगी, या बीच बीच में नींद खुल जाएगी। जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो फिर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं सोमेटिक कंप्लेन, बॉडी एक, बॉडी पेन, जिसका कोई फिजिकल आधार नहीं है, कोई पैथोलॉजी बॉडी में नहीं है, उसके वजह से वो पेन हो रहा है, सोमेटिक कंप्लेन हो रहा है। ये सारा साइकोलॉजिकल है, लेकिन मैनिफेस्टेशन फिजिकल है। तो फ्रीक्वेंट कोल्ड, फीलिंग ऑफ इंटेंस टायर्डनेस, प्रोन टू इलनेस, ये लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स है। तो इसको भी
ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ व्यवहार से संबंधित स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स है, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस में होगा तो उसको, उसके व्यवहार को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति स्ट्रेस में है। जैसे वो नेल बाइटिंग करता दिखेगा, दांत जैसे ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, टॉकिंग टू फास्ट, टू लाउड, इरिटेबल, हॉस्टाइल, क्रिटिकल, एग्रेसिव, इम्पल्सिव, तोड़फोड़ करना, डिफेंसिव होना, बिना वजह गुस्सा हो जाना, बिना वजह नाराज हो जाना। तो ये कुछ व्यवहारात्मक स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर क्रॉनिक और इंटेंस स्ट्रेस है तो दैट लीड्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आई वुड से मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब कुछ हमारे निगेटिव अफेक्ट हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं स्ट्रेस की वजह से। उसमें पहला है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी एक्सीडेंट प्रोननेस पर्सनालिटी होती है, वो बार बार एक्सीडेंट करते हैं। उन्हीं के साथ वो बोलते हैं हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारा ही एक्सीडेंट क्यों होता है। तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और निगेटिव सोचते रहते हैं, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है। फिर लोग कंप्लेन करते हैं फॉरगेटिंग, मतलब भूलने की आदत स्ट्रेस की वजह से होती है। वो कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, कोई सामान रख करके भूल जाते हैं, ऑफिस में बहुत सारे जो पेपर्स हैं हम ऑफिस में छोड़ के आते हैं और घर पे खोजते हैं। तो फॉरगेटिंग एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। कुछ लोग हैं स्ट्रेस की वजह से जो अपना अपीयरेंस है, ग्रूमिंग है, नेग्लेक्ट करते हैं। अपने ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो नहीं दे पाते हैं, उनका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, बार बार मिस्टेक करते हैं और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो प्रभाव है, जो उनका एक पर्सनालिटी में ओज है वो खत्म होते जाता है। वो बार बार छुट्टी लेते हैं, अपसेंट रहते हैं अपने ऑफिस से। तो ये कुछ नेगेटिव अफेक्ट है जो हमारे परफॉर्मेंस को खराब करता है। कुछ वर्क रिलेटेड सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में रहेगा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है, नॉट मेक गुड डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं अच्छी तरीके से, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। जो डिसीजन लेंगे वो गलत होगा, अगर गलत डिसीजन होगा तो इसका जो कंसिक्वेंसेस है वो पूरे परिवार, ऑफिस, सब लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो वर्क रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है उसमें नो लॉन्गर एंजॉय द वर्क। देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनके फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम आती है। कोई चीज़ बारीकी से अगर करना हो तो उनमें प्रॉब्लम आएगी, उनका अटेंशन कंसंट्रेशन पुअर होगा, वो डिस्ट्रैक्टेबल ध्यान होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इजिली, आसानी से, और मोर नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे और उनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम होगा उसमें। तो ये इसको हम बोलते हैं, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट लोग, वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड सिम्टम्स। तो दैट इज नीड्स टू बी केयर फॉर एवरीवन। अब मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज कल बहुत सरल तरीके आ गए हैं, बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जैसे कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कुछ इस तरह की जकॉप्शन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी है।
जो यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ मेडिटेशन, योगा, ये भी स्ट्रेस को कम करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। कुछ गाइडेड इमेजिनरी टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि लोग अपने सेल्फ को कनेक्टेड टू गॉड, और जैसे हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं प्रिस्ट, हम एक तरह से उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं लोग। उसका जो कॉन्शियस माइंड है पे वो सारी बातें कोशिश करता है कि हम उसको समझाएं, और व्यक्ति वैसा करने लगता है, उसकी दिनचर्या ठीक होती है और वो स्ट्रेस को मैनेज करने लगता है। तो बॉडी रिलेटेड एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो दैट इज कनेक्ट टू आवरसेल्फ टू गॉड, ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है आजकल। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। हम कुर्सी पे बैठे हैं, डीप ब्रीदिंग देखना है, सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे, मतलब सांसों की तरफ ध्यान जाता है। फिर जैसे योगा है, सेल्फ एम्पावरमेंट, वर्कआउट रूटीन, मेडिटेशन है। आजकल तो हमको लगता है कि ये जो रामदेव बाबा है, उसकी वजह से लोगों के बीच काफी अवेयरनेस हो गई है। मेडिटेशन में लोग सुबह उठ के कपाल भारती, ब्राह्मणी परिणाम, ब्राह्मणी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ब्राह्मणी, ये सारी लोग करते हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। कहने का मतलब है कि हम एक रूटीन से बंधे हैं, हमारा स्ट्रक्चर में रूटीन है, हम ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमेटिक हैं। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। तो ये भी करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन में पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव में भी पॉजिटिव थिंकिंग, हम समाज को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी को किस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, काउंसलिंग, अगर प्रॉब्लम है तो एक सेशन काउंसलिंग करवा ली, टॉकिंग थेरेपी, लाइफ कोच, ये सारी जो टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक है। तो इसमें मैंने 2 इमेज दिया हुआ है, इससे बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं हम लोग कि जब स्ट्रेस होगा तो इस तरह की एक्टिविटी अपने दिनचर्या में ला करके हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और स्ट्रेस से रिलेटेड जो बातें हैं, हेल्दी लिविंग टू ओवरकम स्ट्रेस। अगर हमारी हेल्दी लाइफ है, जैसे एग्जामिन योर डाइट, लो साल्ट, रिफाइंड शुगर, कैफीन इनटेक, ये सारी चीज को हमें डे टू डे लेवल पे एग्जामिन करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। इसका भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। और हमारी जो डाइट है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सबको पता है। लेकिन दुख की बात है कि हमें सब पता है लेकिन हम करते कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, करेंगे तभी जाकर के फायदा होगा। सबको पता है, सारे इंटेलेक्चुअल्स हमारी ऑडियंस है कि हमें 6 आवर कंटिन्यूअस रेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन लोग बाग नहीं करते। एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स 5 ए डे, ये मस्ट है, लेकिन लोग नहीं करते। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लोग निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन इसी में जो लोग करते हैं उनका हेल्दी लिविंग स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं है। और उनके जीवन में किसी भी तरह के स्ट्रेस आता है तो कॉग्निटिव लेवल पे, फिजिकल लेवल पे वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो एक और हेल्दी लिविंग है, टॉकिंग टू समवन यू ट्रस्ट, ए फैमिली मेंबर और गुड फ्रेंड्स। ये बहुत जरूरी है, बात तो करना पड़ेगा कभी न कभी। और किससे बात करें? जो परिवार के लोग हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। ऐसे लोगों पे आप जिस पे ट्रस्ट नहीं करते, उनसे अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपकी बात को वो दूसरे वे में लें या बाजार तक ले जाएं, जो आपको, अगर वो बात घूम के आएगी आप तक तो आपको स्ट्रेस होगा। तो अपनी बातें, अपने इमोशन की बातें, इमोशन शेयर करना हमेशा, यू ट्रस्ट ए फैमिली मेंबर और गुड फ्रेंड्स, ये भी एक हेल्दी लाइफ है।
जो ओवरकम करता है स्ट्रेस को। अब हेल्दी लिविंग में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं चर्चा करना यहाँ जरूरी समझता हूँ, जैसे एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। हमारी सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिक हो, प्लानिंग हो उसकी। तो ये बहुत मैटर करता है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं तो ये हेल्दी लाइफ लिविंग होगी। आस्क फॉर वेल हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब हमें प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है और हम बता नहीं रहे हैं, हम हेल्प नहीं मांग रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हेल्प हमें लेना पड़ेगा जरूरत के मुताबिक। ये एक हेल्दी लिविंग के अंतर्गत आता है। लर्न टू मैनेज योर एंगर, रिप्लेस इनटू पीस एंड लव। अगर आपको गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा को शिफ्ट करना है पीस एंड लव में। ये काम बड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाता है। आप प्रयास करके देखिए, आप सोसाइटी के कामों में इन्वॉल्व होइए, देखिए कितना आपको अच्छा महसूस होता है। किसी को हेल्प करके, किसी को प्यार देके, किसी को शांति पहुंचा के, किसी की बात सुन के। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, वो अपनी बात सुनाते हैं और अपनी बात सुनाने के पैसे देते हैं। कहते हैं कि आज तक हमारा किसी ने सुना ही नहीं, इसलिए मेरे को स्ट्रेस है, इसीलिए हमें टेंशन है। तो किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप सही तरीके से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका दिल हल्का हो जाता है, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो आजकल लाफिंग क्लब्स खुल गए हैं, फन मेकिंग, डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर, टेक चेंज ऑफ योर लाइफ। जीवन में कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ आपको नेचर से अगर लगाव है तो आप उस चीज को महसूस करिए, वहां जाइए, वहां देखिए, किसी झरने के पास बैठिए, जंगल में जाइए। तो ये चीज हेल्दी लिविंग में आती है। और बैलेंस इन लाइफ, होम ऑफिस, घर के काम को जब तक बहुत जरूरी ना हो ऑफिस में नहीं ले जाना चाहिए, और ऑफिस के काम को घर में नहीं ले आना चाहिए, तभी जाकर के बैलेंस होगा। और लाइफ में जो अप्रोच होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, कि जब जरूरत हो उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट किया, थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा लोगों से बात कर लिया। एकदम से एडमेंट हो जाना ठीक नहीं है, ये हेल्दी लिविंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो डू सिंपली रिएक्ट टू ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसको सिंपल तरीके से रिएक्ट करना है। बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशनली हो जाना, आउटब्रस्ट हो जाना, ये ठीक नहीं है। तो नो यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो एक हेल्दी लिविंग के अंतर्गत आता है। अगर हमारा हेल्दी लिविंग ठीक है तो 50% स्ट्रेस तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। नाउ दैट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम स्ट्रेस मैनेज होगा तो हमें फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का फायदा क्या होगा। उसमें पहला फायदा ये होगा कि फिजिकल हेल्थ गेट्स बेटर। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होने लगेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, हम बहुत बेटर महसूस करेंगे। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। हमारा जो एनर्जी है, स्टेमिना है, वो पॉजिटिव चीज़ों में लगेगा। इमोशनली हम स्ट्रांग होंगे, स्टेबलाइज्ड होंगे, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हम दूसरे को हेल्प करेंगे, होपफुल रहेंगे, खुशी महसूस करेंगे, प्लेजेंट इमोशन को हम इंजॉय करेंगे। एंड एबिलिटी टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, हम कोशिश करें कि हमें इम्प्रूवमेंट हो। एंड हम जो कुछ भी सीखते हैं आए दिन, उसमें कुछ अचीवमेंट्स होगा, हमारा परसेप्शन ठीक होगा, एक्सपेक्टेशन रियलिटी बेस्ड होगा, अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल वैल्यू सिस्टम, बिलीव्स, फॉल्स बिलीफ से हम बचेंगे। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए डे टू डे बेसिस पे। ओवरऑल अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें और भी चीजें आती हैं,
जैसे आजकल लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा मेडिटेशन के अलावा अपने हॉबी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर कोई हॉबी है, हॉबी का मतलब है कि खाली समय में वो काम करना जो आपको पसंद है। कोई गार्डनिंग करता है, कोई बुक्स लिखता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई अपनी ढंग से खाना बनाता है। तो हॉबी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। लिसनिंग ए गुड म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप नेचर के पास जाएं। टाइम टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समय के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से चलें, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। जरूरत के हिसाब से आप थेरेपी लें। लोगों को हेल्प मांगने में संकोच ना करें। और अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल हेल्प, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, ये सब चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज का इस तरह से हमारा जो टॉपिक था, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनी, और इसको आप अपने जीवन में, अपने दैनिक रूटीन में इसको आप इम्प्लीमेंट करें। स्ट्रेस, हर व्यक्ति आज स्ट्रेस में है, और हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेस नहीं है, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। तो इस तरह से हेलो सर, थैंक यू। Thank you very much, sir. You need to stop this presentation. Still you are presenting. But Shatrughan, Yes, 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 yeah, sir. it was a very nice presentation, and a lot of things we also learned to how to manage the stress. I think that is very important. I just want to know something about the de-addiction centers in Himachal. How many de-addiction centers are there in Himachal, sir? Sir, 62 de-addiction center in private sector. In private sector? Yes, sir. Solan, Kulu, Simla, ये de-addiction. So these de-addiction centers are for both alcohol as well as drugs, same or they are different? Yes, sir, including all that. उसमें अल्कोहल, ड्रग्स, जितने भी तरह के नशा वाले लोग हैं वहाँ एडमिट होते हैं, और उनका पूरी तरीके से डी एडिक्शन किया जाता है। मैं उस HP मेंटल हेल्थ जो अथॉरिटी है उसका एक मेंबर हूँ, और हेल्थ सेक्रेटरी उसके प्रेसिडेंट हैं। तो वहाँ हम लोग 62 डी एडिक्शन सेंटर को लाइसेंस दिया है। कोविड की वजह से अभी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन जो मैंने 62 डी एडिक्शन सेंटर की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू में, सोलन में, शिमला में, हमीरपुर में, ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ एक डी एडिक्शन, दो, तीन, चार, किसी डिस्ट्रिक्ट में तो 5 डी एडिक्शन सेंटर है। तो हमारे नियरेस्ट कौन सा होगा? सुंदरनगर की हम बात करते हैं, प्राइवेट मंडी में होगा। मंडी में है? मंडी में सर, इसकी HP मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है, उसमें सारा लिस्ट दिया गया। Any more questions from the participants? I believe सबको या तो सब कुछ समझ में आ गया सर, या सबको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं सर, साइकोलॉजी ऐसी सोचते हैं ना कि उनको समझ में आ गया है या उनको नहीं समझ में आया, तभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये सबको समझ में आ गया, सबको समझ में नहीं आया। ये the language is so very good for common person also, they can understand. It's a very very simple language. I think is used easy to understand for everybody.
I don't think so. We do have any queries regarding the presentation. So I believe so I should uh, ask the sir. Well, I ask again, Dr. Ranjan Malhotra, our guest of honor. So I request Dr. Sudhakar Singh to just have an honor and please end this session. Sir Jitendra, Yes, sir. डॉक्टर अशोक शर्मा को रिक्वेस्ट करें कि वोट ऑफ थैंक्स करें अगर Yes. Okay. I would like to Sharma sir, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार सर. Sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ on behalf of this session from आप हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा जी, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अनिल सिंगला जी, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर NIEPVD CRC Sundarnagar and Dr. Satyamal Singh, I request you to be please honor this. I think sir, let me correct here. So Dr. Ashok Sharma will speak on behalf of the college, not on behalf of the CR. Right. So I do all of this. vote of thanks for the resource person, I think. Not Yeah. for. So Dr. Ashok Sharma, please say a vote of thanks for all of them. Okay, sir. All of them. No, sir, you have corrected everything. I was also confused whether I should thank on behalf of DRC or I should thank on behalf of this NIEPVD, or I should thank on behalf of Himachal Dental College Sundarnagar. So you Now, so coming over to my text proper, let me propose a vote of thanks to Dr. Himanshu Das, Director NIEPVD Dehradun, Uttarakhand, and let me thank Dr. Anil Singla, Chief Guest of the Day, for being physically present and interacting with the Speaker of the Day. Dr. Singla has had very long innings in the DCI, and he is presently Director of the college. I think this part was omitted when his biodata was given. I am also thankful to Director Dr. Vikas Jindal, who I think is not participating in the webinar due to his health problem. I am thankful to Dr. Shatrughan Sinha, who delivered a very valuable talk in a very simple syntax, in a very understandable language. I have heard your this talk in our college also, but it was quite refreshing to hear you again. You have discussed various parameters of good health, and I think with a little effort on our part we can manage it. And the worst part of this ill health, I think we have seen the suicide of our former DP, Shri Ashwini Kumar ji. I think the first hit he received was during lockdown. He was in Bombay, which I read in the Tribune. He was in Bombay, and he was under depression because he was completely isolated due to lockdown in Bombay. And the result was the hangover continued, and it resulted in ultimately his suicidal death. We have seen the death and the sad demise of Sushant Rajput, which hit the national and international headlines. I think these are the consequences of our ill mental health. So with a little effort on our part, I think we can do it. As Dr. Shatrughan Sinha has pointed out, if we exercise a little 25 minutes daily, I think that can keep our physical and mental health okay. So, sir, again, I'm thankful to you. I am very happy that you have given this opportunity to Himachal Dental College for participation by the faculty and the students. Thank you all, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Singla, sir, Dr. Ashok Sharma, sir, your respected teachers, colleagues, students. So on behalf of my director, my entire CRC team,
वी आर ग्रेटफुल टू यू, आपने समय निकाला और हमसे जुड़े। तो इसी के साथ ये जो सभा है, वेबिनार की जो सभा है, यहाँ समाप्त की जाती है। वंस अगेन थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।